you had not expected. How much of the support did you really get from your family and friends at this point of time? So I believe that this external support is very important to maintain the motivation for the 1.5 or 2 years of preparation, which we have to put in at the least, because even the first attempt requires that much amount of preparation. So there were a lot of times I had some doubts where the support helped me get up and start moving again. So I'm really thankful to all the people who believed in me, and they had much more confidence than I had in my self ability. But their positivity, ultimately, I also catched up to it. And when the exams time came near, I was able to perform well. And I believe both your parents are in the services, right? No, ma'am, my father is in services. My Okay. mother is a homemaker. Okay. But she also supported me a lot because I was studying at my home, and she ensured that I got a good, proper food. Environment was good at the home. I wasn't disturbed by anything. A lot of family functions were going there, but she never disturbed me. So Okay. she supported me a lot. I can't thank her enough for that. But Akshat, with you, I think your parents, both the Yes. parents are into services. So Right. was it something? It's almost like a legacy carried forward for you. So you had this idea right from the beginning that you have to get into the services, or you had some other career option in your mind? No, actually, to be very honest, till my third year, I was clear that I was not going to go opt for this civil services exam. So it was Okay. after my internship. I did an internship in my third year. Then I realized that what I want from my life is something that goes beyond money. So what was that internship that changed your life? Yes, my internship was with Samsung in Bangalore. So Okay. there I realized that what I want from my life, that is something that goes beyond money, like I said. And I wanted to contribute to the society, to give back what I've received. And if you are able to get the recognition, the respect that you do in this service, then that is something which is kind of, you can say, an added bonus. So these all factors were obviously pulling factors, and like you said, both of my parents are civil servants. So I knew in the bottom of my heart that if I become a civil servant, then they'll be very proud of me. So that was also another factor that motivated me. Okay. And Shreyas, what about you? I mean, what was that factor that really kept you going? Actually, I'd left my job thinking that I want something out of the effort that I put in. So in job as well, I used to work. After finishing your IIT, you already had a job. Yeah, I worked for 2 years with Ernst & Young. Okay. So I had to put in 12 to 4 hours every day. So if I were putting that, why not do it for the people of the country, because it will bring much more satisfaction for me. Okay, so you left a handsome pay packet, maybe, and then you got into the services. Yes. Okay, and Shrishti, what about your journey? How much of the support really you got from your family, friends? A lot of support. I'll say without them, I won't be able to make it as far as I have made it. My parents made me feel, because I belong to a normal, I'm in a very middle class family. Nobody in my family has ever been into civil service or even written the exam. Okay. So it was like fearful at the outset that will I be able to make it? But then the continuous support of my friends and the teachers that I came in contact with, they made me believe that somewhere down the line, maybe I'll be able to make it. So I owe all of this to these people in my life. Rakesh, how much of the difficulty, or rather I would say a challenge, was it for you while preparing for the exams? What were the kind of difficulties you actually came across? Because a person who's visually impaired, for people who are normal, it's very difficult to fathom at this point of time as to, how you would have got buried yourself into the books. Ma'am, initially when I started the preparation, I was for 3 to 4 months, the books were not available for me. The study material that is prescribed was not easily available. So I got all those books scanned by the library. So I spent a lot of time into that. Meanwhile, I also continued my study through other means like internet and through other kind of volunteers or something. Okay. But because I wanted to crack this exam in first attempt itself, so that helped me to sustain my preparation. And apart from that, ma'am, since I am also from middle class family, so there was no I am the first generation civil servant. Okay. So that was also one of the challenge.
And whatever study material was required during the course of your studies, you got all that and you relied more on the internet, more on the books. What was the proportion you actually used? Ma'am, till now I have not completely got the material. Okay. So I am like most of the times I am depending on the internet. So the technology that has upgraded has helped me a lot. Okay. Because most of the materials is not available either in the e-text format or in the braille. So it should be read online if you are capable enough, or if you are able enough to use the internet, or that can be available made available on the internet, then it is okay. Otherwise, like there is not completely accessibility of the material. Okay. My question to you, Kanish, now is, and of course with each of you one by one, is that there is a feeling that, you know, if probably you are not good in studies at your school level, you cannot crack an IAS exam. That's a very wide perception which is there. Not good in studies, so you can't crack an IAS. Is that true after all your experience? Ma'am, And what has been your track record in the school? ma'am, fortunately, I was, by the blessings of God and my parents, I was good enough in studies. Okay. But I felt over the last 2 years that UPSC is more related to the psychological aspect and conquering the fear which we have in mind, Okay. and getting overawed or burdened by this examination. So personally, I took it as a normal examination and studied just for this purpose of enjoying what I hadn't studied for last 10 years. So that motivated me, and I tried to overcome that fear and not think about the final result, Okay. and only focus on the next immediate target. And through that, I was able to concentrate in a better way, and ultimately, I was able to clear the exam. And what about you, Akshat? How has been your track record in the school? Were you an average student? Were you just excellent? Because why I'm asking you this question is to, you know, break these myths that if you're not good at studies, you can't crack an IAS. So through your stories, you know, there are a lot of people who are there in the audience, and also the millions of viewers who will be watching this program. It will be an example to set. So that is why I wanted to ask you this question. Yes, I was good in studies right from my school days, but what I personally believe is that we do not give adequate attention to those who kind of, you can say, were average during their school days, because there are as many toppers, as many people who clear this exam who used to be, you can say, average in their studies right from 10th class or 12th class. So I think this is the only exam where it does not matter. Okay. It might matter in other exams, but not in this particular exam. And this particular thing that we have developed in our mind, please just remove that. Your past record does not matter. What matters is whether you are willing to put up the hard work right now. So please just remove this from your head. Okay. So I'll come back to your questions also after in a bit. Shreyans, I'll come to you. Yes, you wanted to say something? Just a small thing I'd like to add, that 2 years ago, I had no idea what is the difference between a PM or a president, or how the elections are held in the country. This is unbelievable, really. I'm being frank. He's saying that he didn't know the difference between a prime minister and a president? Yes. Are you kidding? The roles they play, what are their functions, Okay. etc. I had studied it in 2008. My Last God. time I studied, it was in 2008. 10 years, I was in a technological field. I was working for 2.5 years. Absolutely. We all do not have a background in social sciences. Okay. But what we had was this willingness to put in the hard hours. So that is what is needed, not your past Okay. record. Okay, yes, Shreyans, you were saying something? Actually, what matters in this exam is the continuous hard work for 2 years, doing brick by brick every day, because that's what matters. You have to sustain the journey. Only then you'll be able to get out But of it. your track record in the school and the college days was, you were an average, above average, excellent. Which category did you belong to? I was above average, you can say, Okay. because my parents made it a point that I would do good in studies, and they also made sure that I was good in extracurriculars as well. So you can say that I tried to explore each and everything that was there. I also interviewed Junaid Ahmed just a few days ago when your results were out. He was a third topper, and let me tell you that he did say that in class 10 he got about 60%. He was an average student in his college days. So it's not that you got to be always above average to crack this exam. Shrishti, what has been your experience? I completely agree, ma'am. Despite whatever we score in our school days,
we almost forget what we read, the social sciences that we read till 10th standard. So when we go into the college and seriously start taking the UPSC preparation, we start from a fresh slate. So probably at that point, no matter how much we have scored in our 10th, 12th or whatever, It doesn't matter. It doesn't matter. How much consistently you can prepare, giving those kind of hours, being disciplined for some time of your life. Probably that matters the most. That's an important bit. We'll come on the discipline bit after a little while. Rakesh, how has been your experience? Were you an average performer in the school or in the college during the college days? I was good at studies. Okay. I was one among the toppers, but I was not the topper. So it's better that you have some good academics, but it is not necessary that average people can't crack. If they put in hard work and extra efforts, then it is very much possible. Okay. Now let me go to the audience. Now one by one, what question do you have in mind? Now you've heard them. We'll go back to their success stories and the mantras of success. But any question you have for anyone here? मैं अंगद कुमार। आपका सवाल किससे है? सर मैम दोनों से है। सबसे है, चलिए। जी, मेरा कहने का मतलब मैम ये हुआ, जो सर और मैम जितने भी उनका बैकग्राउंड लगभग साइंस से रहा, तो इन्होंने जबकि यूपीएससी एग्जाम में जो है ज़्यादातर जो मार्क्स हैं वो आर्ट्स विषय से हैं। Okay. तो इन्होंने कैसे मैनेज किया और क्या चैलेंज किया उसके बारे में? Okay, so he's saying that most of you have a science background, but what about people who come from the humanities background? उनके लिए क्या स्कोप है? उनका सवाल ये है कि सिर्फ साइंस बैकग्राउंड से ही लोग आते हैं. I think yours was not, or it was a science background. Okay, so any of you can answer this question? Ma'am, I'll say that since we are from science background, we have an initial fear that will we be able to make it? Because when humanities background, they do have a touch of, studies from history, geography. So they keep studying these subjects in their graduation itself. Okay. What his question was like, how did we manage? So I'll say it is challenging. Since I graduated last year, it was really challenging. I had to manage the college and this together. So, but then I'll say there's this, something burning inside you that pushes you every morning, and Absolutely. it tells you that, and you have to decide, you have to give a priority. I said to myself that no, college really does not matter. What matters to me is UPSC. So decide your priority well. तो आपका जो सवाल था, इनका ये कहना है कि इनके लिए ज़्यादा चैलेंजिंग था, क्योंकि जो ह्यूमैनिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं वो तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी में सब कुछ पढ़ते रहते हैं, इनके लिए ज़्यादा बल्कि डिफ़िकल्ट था और चैलेंजिंग था। यस, मैं बस यही बोलना चाहूँगा, जैसे मैंने बोला कि मुझे पहले इतना पता नहीं था पॉलिटी के बारे में, तो मेरे लिए वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ थी। जब मैंने पढ़ना स्टार्ट करा, मैं फ़र्स्ट टाइम उस चीज़ को पढ़ रहा था, तो मैंने इंटरेस्ट लेके वो चीज़ पढ़ी, इसलिए मेरे को कभी उसका बर्डन नहीं लगा कि मुझे ये पढ़ना पड़ रहा है। एंड आंसर राइटिंग की बात होती है तो वो थोड़ा स्किल होता है, उसको सीखना पड़ता है, बट वो भी चैलेंजिंग था। बट मैंने कभी हार नहीं मानी उस चीज़ को लेकर और कभी डरा नहीं। तो कभी हार नहीं मानना और कभी डरना नहीं है। कोई और सवाल? मैं कृष्णा सिंह सर आपसे, हेलो सर। हेलो मैम, मेरा सर आपसे सवाल है कि पीटी अभी करीब आ रहा है, 2 जून को पीटी है हमारा, और पीटी को लेके एक बहुत ज़्यादा डर रहता है क्योंकि प्रिलिमिनरी स्टेज वही है, वहाँ से बाहर होने के बाद फिर कुछ ऑप्शन बचता नहीं है आगे फिर दूसरे साल, तो पीटी बहुत ज़्यादा हेक्टिक सिचुएशन क्रिएट कर देता है एक, जिसको लेके बहुत ज़्यादा डर है। और इस बार मैं पीटी देने वाला हूँ 2 जून को, मेरा पहला अटेम्प्ट है ये। तो सर पीटी के लिए कुछ कैसे करंट और जो और स्टैटिक्स पोर्शन है उसको कैसे को रिलेट करके कैसे पढ़ा जाए? के लिए आपको कुछ टिप्स देनी है, जो कि अभी 2 जून को है, आप कह रहे हो? जी, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है ये। डर रहता है, मुझे भी था जब मैं प्रीलिम्स दे रहा था कि प्रीलिम्स निकलेगा नहीं निकलेगा, बट इशू वही है कि जो डर होता है उसको माइंड से निकाल के आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। एंड रही बात स्टैटिक आएगा, करंट रहेगा, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, तो हमेशा कोशिश रहनी चाहिए कि सारी बेसिस अपने कवर्ड होने चाहिए। आपकी क्या स्ट्रेंथ है, कौन से सब्जेक्ट्स अच्छे हैं, कोशिश करिए कि उनमें कभी गलती नहीं होनी चाहिए, उनमें आप मैक्सिमम स्कोर लेकर आएँ। और जो आपकी वीक है उसमें कोशिश करिए कि गलतियाँ कम से कम होनी चाहिए। एंड कई बार होता है कि हम आसपास के लोगों की बात सुन के डर जाते हैं, कोई कुछ बोल देता है तो वो डर माइंड में बैठ जाता है, तो वो भी ज़रूरी है कि थोड़ा ब्लॉक करें आप ऐसी आवाज़ों को साइड से जो आपको अंडर कॉन्फिडेंट फील कराएं। ऐसी इंटरनली सोचना है कि आई एम कॉन्फिडेंट इनफ, और कैसा भी पेपर हो, अगर पेपर टफ़ आ रहा है तो सबके लिए टफ़ है। आप ये मत सोचिए पेपर के अंदर कि पेपर टफ़ आ गया मेरे से क्लियर नहीं हो पाएगा। हमेशा ऑन द स्पॉट थिंकिंग प्रीलिम्स में बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि पैटर्न कुछ भी हो सकता है या क्वेश्चन किसी भी टाइप के रह सकते हैं। बस अगर आपने पढ़ाई अच्छी करी है, आप अपनी स्ट्रेंथ्स को लेके कॉन्फिडेंट है कि मुझे ये आता है, तो वो क्वेश्चन तो आप हमेशा सही कर आएंगे। बट दिस ब्रिंग्स मी टू अ क्वेश्चन। आपने एक बहुत अहम सवाल किया और मेरे ख्याल से बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते होंगे कि
प्रीलिम्स में क्या करेंगे, कैसे स्ट्रैटेजी अपनाई जाए. To you, Akshat, now that, how do you really strategize for the prelims? Like he's saying, he gets scared because it's his first attempt. But then there are so many questions regarding the right combination of subjects. Do you study more for the current affairs? Do you study more for the static portion? How did you, in your case, really strategize for your prelims? Because that's the first hurdle you really cross. देखिए, मेरे केस में क्या था कि मैंने पूरे साल भर तैयारी की थी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से. तो मैंने जो है अपना कंटेंट ऑलरेडी इस हिसाब से बना लिया था, शॉर्ट नोट्स, कि जो मेंस के साथ साथ प्री भी कवर कर लें. तो आई स्टार्टेड टू गिव डेडिकेटेड फोकस ऑन प्री इन द मंथ ऑफ मार्च. सो तब मेरे नोट्स तैयार थे, तो मैं उनको सिर्फ रिवाइज करता रहता था. और आई यूज़ टू गिव अनड्यू फोकस ऑन सॉल्विंग टेस्ट. तो मेरा ये मानना है कि अक्सर क्या होता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में अपन टेस्ट पे फोकस नहीं कर पाते, हम सिर्फ नॉलेज गैदर करने में लग जाते हैं और टेस्ट को एडिक्वेट टाइम नहीं देते. क्योंकि प्रीलिम्स में टेस्ट सॉल्व करने की जो स्किल है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप टेस्ट सॉल्व करते रहिए और अपना एक तरीका बनाइए किस तरीके से आप टेस्ट सॉल्व करेंगे. आप क्या 2-3 राउंड्स में पूरे 100 क्वेश्चंस कवर करेंगे, आप कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, आपको किस हिसाब से लग रहा है कि यार जब मैं ये अप्रोच आजमाता हूँ तब मेरे मैक्सिमम मार्क्स आते हैं. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच आई बिलीव कि बच्चे कभी कभी मिस आउट कर जाते हैं. लेकिन अक्षत, जो फॉर्मूला आपके केस में सक्सेसफुल हुआ, श्रेयांश, every individual is different. Maybe what appeals to you would not appeal to maybe another student or another individual. But what is that mean mantra or the average mantra which can really work for everyone, whether he's an average student, whether he's an above average? What really is the clincher so that you can just crack the prelims? मैम, मेरे हिसाब से ये है कि आपको उस दिन के लिए अपना 100% देना है. तो आप सिमुलेट कीजिए, नॉलेज गैदर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और ये ट्राई करिए कि उस दिन 2 जून को आप अपना 100% दे पाएँ. तो आप प्रैक्टिस करिए टेस्ट अपनी, जैसे कि अक्षत ने कहा, अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए कि मैं इस तरह से पेपर को हैंडल करूँगा. इस तरह के अगर क्वेश्चन आए, आप पुराने पेपर्स को देखिए किस तरह से क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो रहा है, किन टॉपिक्स को ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है, ताकि आप थोड़ा डीप में पढ़ें, उनको आप अच्छे से कर लें, ताकि आपको एक एज मिले अलग दूसरे लोगों से ज़्यादा. But Shrishti, how many hours do you really have to put in? Like when you are talking about these marathon preparations, you have to give in your 100% on that particular day, but you're not going without any experience because you've never appeared for an exam like UPSC. So what is the idea of the timing of the studies? कितने घंटे आप पढ़ोगे कि आपकी पूरी तैयारी 100% UPSC एग्जाम्स के लिए हो जाए पहले अटेम्प्ट में? मैम, एज सच घंटे तो मैटर नहीं करते हैं. दिस इज़ लाइक द फर्स्ट थिंग, बिकॉज कितने टॉपिक्स हम कवर कर पा रहे हैं, बिकॉज वी अलॉट सम टॉपिक्स, लाइक वी डू प्लान, एक वीकली बना लिया या एक डेली प्लान बना लिया. So plan according to that, and whatever time that takes, put in. If your topic gets over in 2 hours, you have spare time to invest in something else. Right. So don't go for hours. How you can mentally train yourself to read and remember. That is what is important. I'm sure बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर ये समय पूछना चाहेंगे. अभी आपके पास आऊँगी कि ये जो प्लान की आप बात कर रहे हैं, ये प्लान आप कैसे बनाते हो? से फॉर एग्जांपल आपका वीकली प्लान है कि एक वीक में आपको ये टॉपिक्स कवर करने हैं, इन सब्जेक्ट्स को कवर करना है. तो ये प्लान कैसे बनेगा? छोटा छोटा आंसर सबसे ले लेते हैं. राकेश, आपसे लेंगे सबसे पहले, फिर मैं वापस कनिष्का के पास आऊँगी. मैम, स्ट्रेटजी और प्लानिंग मैं समझता हूँ कि पढ़ने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. जब भी हम स्टडी स्टार्ट करते हैं तो स्ट्रेटजी और प्लानिंग करने के बाद ही ये डिसाइड होता है कि हमारा सिलेबस कितने टाइम में कंप्लीट होगा और कौन कौन से हमने गोल सेट किए, जो कि हमें, क्योंकि लिमिटेड टाइम होता है हर एक स्टूडेंट के पास. तो इसलिए उसमें परफॉर्मेंस देने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी सारे इसेंशियल टॉपिक्स जो हैं वो अच्छे से रिवाइज़ हो जाएँ, मिनिमम 2 या 3 बार रिवाइज़ हो जाएँ. उसके अकॉर्डिंगली ही हमें प्लान बनाना होता है. ओके, कनिष्का, यू वांट टू से समथिंग? मैम, मैंने हमेशा सोचा था कि अगर मैं ज़रूरत से ज़्यादा टाइम प्लानिंग में डालूंगा, कई बार होता है कि हम प्लान बनाते हैं, वो फॉलो नहीं होता, फिर नया प्लान बनाते हैं, तो कई बार हमारा जो टाइम है वो प्लान को अपडेट करने में निकल जाता है और टाइम वेस्ट होता है. तो थोड़ा डायनामिक होना भी ज़रूरी है. आप प्लान ऐसा बनाइए जो मैनेजेबल हो, एंड ऐसा नहीं कि हर बार डेली प्लान बना के चल रहे हैं. कभी वीकली या कभी फोर्थनाइटली प्लान भी बनाना ज़रूरी पड़ता है. बट टारगेट्स ऐसे सेट करिए जो रियलिस्टिक हो, कि उस टारगेट्स का आप एटलीस्ट 80% या 85% कंप्लीट कर रहे हैं.
अगर कई बार होता है कि हम 50% ही कर पा रहे हैं टाइम लिमिट में, तो थोड़ा हम डिमोटिवेटेड फील करते हैं कि यार मेरा टारगेट था, मेरा नहीं हुआ है। 80% इज़ अ वेरी गुड टारगेट, गुड कंप्लीशन रेट, कि अगर आपने जो टारगेट बनाया है उसका 80% कर लिया तो यू शुड बी हैप्पी अबाउट इट। और थोड़ा टाइम बफर उसके हिसाब से चल के रखते हुए चलिए कि थोड़ा जो रह गया था वो भी कंप्लीट हो जाए। बट रियलिस्टिक टारगेट्स एंड ज़्यादा इस पर ज़रूरत से ज़्यादा फोकस भी नहीं होना चाहिए कि मैं टाइम टेबल ही बनाता रह जाऊँ और मैं कभी पढ़ भी नहीं पाऊँ। अच्छा, अब कुछ सवाल ऑडियंस से ले लेते हैं, फिर मैं बाकी टॉपर्स के पास आती हूँ। हाँ, यस, माय नेम इज़ सरोज कुमार। मेरा क्वेश्चन है सर, थोड़ा जोर से बोलिए। मेरा क्वेश्चन है कि जब एग्ज़ाम आते हैं तो मैगज़ीन के लिए बहुत सारे उलझनें आती है। मार्केट में इतने सारे मैगज़ीन है, कौन सी मैगज़ीन पढ़े, कैसे पढ़े, इसका कन्फ्यूजन रहता है हम लोगों को। एब्सोल्युटली, बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया कि जो इतना मार्केटिंग होती है कि आप कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाएं, कौन सी किताबें पढ़ें, bombardment of information होता है. How do you really tackle this bombardment of information? Because there's an information highway. Now, what information is going to be relevant for you? What is targeted information for you so that you can utilize it in a minimal time? How do you really, what are the tips you would like to give the student and also the number of people who are watching the program? ये बात बिल्कुल सही है कि आजकल मार्केट में जो मटेरियल है वो ज़रूरत से ज़्यादा है। तो आपको क्या करना है, आपको एक पर्टिकुलर रिसोर्स उठाना है, वो कोई भी एक मैगज़ीन हो। सपोज से मेरे केस में आई यूज़ टू फॉलो विजन IAS प्रीलिम्स 365 मैगज़ीन, PT 365 आप लोगों ने सुना होगा। तो सिर्फ उसी पर मैंने ट्रस्ट किया। अब कभी कभी ऐसा लगता था कि इसमें तो काफ़ी कंटेंट नहीं है, और भी चीज़ें हैं जो टेस्ट में पूछे जा रही हैं बट मुझे नहीं आती। बट मैं फिर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अब जो है 2-3 और अलग अलग सोर्सेज से फॉलो करने लग गया। सो आई ट्रस्टेड दैट पर्टिकुलर सोर्स, और जो टेस्ट से मुझे सीखने को मिलता था वो ज़रूर मैं जॉट डाउन करके रख लेता था। तो प्लीज़ मैं कहूँगा करंट अफेयर्स ये सब जो मैगज़ीन रहती हैं, एक चुनिए इनफैक्ट, और उसी को ट्रस्ट कीजिए, उसी से आपका हो जाएगा। आप अगर उसको ज़्यादा बढ़ाएंगे, आप ये सोच रहे होंगे कि ज़्यादा नॉलेज आ जाएगी तो शायद और फ़ायदा हो जाएगा, ऐसा आई डोंट थिंक पर्सनली उतना इट विल हेल्प यू। रादर आपका बहुत टाइम इसमें यूटिलाइज हो जाएगा और जो आउटपुट होगा दैट विल बी मिनिमल। श्रेयस, आप इस पे कुछ कहेंगे? इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला अक्षत ने, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैम, करंट अफेयर्स के लिए आई यूज टू रिलाई ऑन न्यूज़पेपर्स, और उसी से काफ़ी कुछ समझ में आती थी चीज़ें। और उसके बाद जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत सारे समरीज निकालते हैं या मंथली कंपेंडियम निकालते हैं, तो जैसा कि अक्षत ने कहा, आप किसी एक को पकड़ लीजिए और उसको एज अ नोट्स आप रेफ़र कर सकते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर्स आपने पढ़ लिए थ्रू आउट द मंथ, और फिर आपकी मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए यू कैन गो टू द मैगजीन्स। Okay. Shrishti, what is your mantra? What are the tips you would like to give the audience? And then I'll again come to the girls who are sitting in front. Yes. These are the things that they added. I think I completely agree. So you also followed just a few books for current affairs? Yes. Not a plethora of them? No. Because that confuses us. Ultimately, most of the things are, overlapping. Something is the same. It's way better that you focus on remembering and reproducing that thing. So tests come in here. And when we start, I'd also like to add UPSC syllabus and the previous year papers. These are like the guide for the ultimate guide, because you have to have a copy of UPSC syllabus and a couple of previous year papers and keep checking on them, and they tell you what exactly is the standard of questions that are going to appear in the exam. Okay. Yes, these young girls who are sitting in the front row, any of you? Myself Khushbu Yadav, or I am also preparing UPSC, and I am also pursuing BTech Electronics Engineer also. So मेरा क्वेश्चन सृष्टि मैम से है कि मैम आपने कैसे कॉलेज को जितने असाइनमेंट PPT एंड ऑल्स मैनेज किया, साथ में UPSC को लेके आपने प्रिपरेशन किया, तो क्या क्या चैलेंजेस थे और आपने उसे कैसे मैनेज किया? जी, चैलेंजेस तो बहुत होते हैं, बट एक जैसा मैंने कहा था ना कि कई बार जो है हमारा दिमाग हमें कंट्रोल करता है। इट टेल्स यू दैट टेस्ट आ गया है, यू गॉट टू स्टडी दिस। आई थिंक यू शुड स्टार्ट कंट्रोलिंग योर माइंड। एक प्रायोरिटी सेट कर दीजिए अपना दिमाग में कि UPSC मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, इन केस आप फाइनलाइज कर चुके हैं। तो वो मैंने एक दिमाग को फीड करती रही, और फिर थोड़ा एनर्जी कंजर्व करती थी। कॉलेज जाती थी तो जब शाम को लौटती थी, और बस एग्ज़ाम, क्योंकि हम इंजीनियर्स हैं, इससे अगर हम पहले से पढ़ने लगे तो हम इंजीनियर किस नाम के रह जाएंगे। तो थोड़ा सा एग्ज़ाम जब पास आने लगे तो जस्ट 1 मंथ पहले मैं अपने कॉलेज के एग्ज़ाम्स के लिए प्लान कर लेती थी। उनको थोड़ा एक चैप्टर हर दिन में निपटा के कॉलेज के एग्ज़ाम मैंने वैसे निकाले हैं।
बाकी यूपीएससी को मेरा प्रायोरिटी आप उसको दें, मतलब ये कहूँगी। ओके अक्सर एक धारणा बनी हुई है कि आपको अच्छे से अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप शायद आईएएस एग्जाम नहीं क्रैक कर सकते. So is it all about self preparation or it's about going to a good coaching institute and getting coaching? तो coaching कितना helpful है इस पूरी preparation में यूपीएससी के? मैम मेरा ये मानना है कि although coaching institutions help student in clearing the exam, Okay. but they are not only the means through which we can crack the exam. Okay. मेरी जो प्रिपरेशन हुई है पूरी डिजिटल मीडियम से हुई है ऑलमोस्ट. Okay. सो मैंने इंटरनेट का यूज़ किया इंटेंसिवली और जो नोट्स इंटरनेट पे अवेलेबल हो जाते हैं विद इन 1 or 2 days वो बाहर जो मार्केट है उसमें आते हैं ऑलमोस्ट 1 or 2 months. Okay. तो इसलिए आजकल के समय में मैं मानता हूँ कि टेक्नोलॉजी से अगर आप प्रिपरेशन करें तो वो ज़्यादा बेटर है. आप ज़्यादा बेटर रहेगा उसके लिए और ज़्यादा अच्छी गाइडेंस मिल सकती है ऑनलाइन मीडियम से. ओके इस पर ओपिनियन ले लेते हैं बाकी टॉपर्स का भी. कनिष्का, यू फील दैट ऑनलाइन मीडियम इज मोर हेल्पफुल? डज इंटरनेट हेल्प यू बेटर देन द बुक्स? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल कोचिंग के बारे में बोलना चाहूँगा कि कोचिंग इज़ नॉट नेसेसरी एंड इट इज़ नाइदर सफिशिएंट. ओके कि आपके केस में क्या था? आपने कोचिंग ली? I did because I realized that I have some flaws which I have to cover up for. So and I had a very difficult optional. आपको इंटरप्ट करूंगी. आपने फ्लॉज वर्ड यूज़ किया कि मेरे अंदर कुछ फ्लॉज थे. तो अगर उन फ्लॉज के बारे में अगर आप डिस्कस करके इन लोगों के सामने बताएंगे तो इन्हें हेल्प होगा. तो क्या फ्लॉज थे? आपने क्या रियलाइज़ किया कि मेरे अंदर ये कमी थी जो कि मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट से पूरा कर पाऊंगा? मैम पर्सनली जैसे मुझे लगता था कि ऑडियो विजुअल मोड ऑफ लर्निंग जो है वो मेरे को एड करती थी. तो इसलिए आई थॉट कि नॉट ओनली कोचिंग, आप ऑनलाइन भी वीडियोस देखेंगे, इफ़ इट हेल्प्स यू रिमेंबर इट, वो देखना चाहिए. तो इसलिए मैंने प्रेफर करा. कौन से वीडियोस अब ये भी बता दीजिए, क्या देखते थे आप जनरली जो जो आपको हेल्प करा और आपने टॉप किया? मैम जैसे कई ज्योग्राफी के होते हैं या हिस्ट्री के होते हैं, इस टाइप के जो हिस्ट्री जैसे मैं कभी बुक से पढ़ के नहीं हो पाता था. आई फेल्ट स्लीपी और वो रजिस्टर नहीं होता था. इफ़ आई वॉच अ वीडियो फर्स्ट तो मेरे माइंड में एक टाइमलाइन सेट होती थी कि दिस इज़ द ब्रॉड फ्रेमवर्क. फिर मैं बुक से अगर मैं ऐड कर रहा हूँ उसके बाद में तो आई कैन ऐड 2 थिंग्स बिफोर एन इवेंट एंड आफ्टर एन इवेंट. तो फिर मेरा पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर माइंड में रेडी होता था. तो बिकॉज ऑफ दैट आई यूज्ड ऑल दीज रिसोर्सेज. एंड जैसे मैंने कोचिंग की नेसेसरी एंड सफिशिएंट की बात करी कि ज़रूरी नहीं है कि आप कोचिंग करेंगे तो आपका क्लियर होगा, और कोचिंग गारंटी भी नहीं करती है कि आपका क्लियर होगा. आउट ऑफ 24 hours a day ओनली 2 hours यू कैन गो फॉर एनी क्लास. बाकी 22 hours आपको खुद को प्रिपेयर करना ज़रूरी है. ओके सो उसमें आई डिड अ लॉट ऑफ सेल्फ स्टडी. उसमें मैंने रिवीजन पे फोकस करा. जो मेरे को कंटेंट कवर करना था विद इन लिमिटेड टाइम पीरियड, उस पर मैंने फोकस करा एंड दैट्स हाउ आई वाज एबल टू मैनेज एवरीथिंग. लेकिन अभी जो 21st सेंचुरी का एक बहुत बड़ा चैलेंज है वो है फेक न्यूज़. जब आप कहते हो कि आपको वीडियोस देखने पड़ते हैं बहुत सारे टू बोल्स्टर योर नॉलेज, टू बोल्स्टर योर information, how do you really segregate? Like you depend on the news channels, you watch online, like how do you really do that? Because a lot of fake video is also there, fake information is there. So how do you really rely on that? हम इस एग्ज़ाम में फ़ेक न्यूज़ का तो मेरे हिसाब से उतना वो नहीं आ पाता, क्योंकि जो कंटेंट है वो आप ऑथेंटिक सोर्सेज से पढ़िए. एंड इंटरनेट पे काफ़ी सारी साइट्स हैं जो आईएएस प्रिपरेशन के लिए केटर करती हैं. सो उनमें जो इन्फॉर्मेशन आती है दैट इज़ पिक्ड अप फ्रॉम सोर्सेज लाइक द PIB, न्यूज़पेपर्स लाइक द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस. सो दैट इज़ ऑल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन. सो इसमें जो है फेक न्यूज़ का मेरे हिसाब से फॉर दिस पर्टिकुलर एग्ज़ाम आपको इतना डरने की ज़रूरत नहीं है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ कोई गलत तो नहीं, प्रीलिम्स में मेरे मार्क्स खो दिए गलती से. तो ऐसा इसमें नहीं होगा. तो जस्ट रिलैक्स. लेकिन बहुत बार लोग पूछते हैं कि किस तरीके के चैनल्स देखें ताकि हमें और इन्फॉर्मेशन मिले. तो आप लोगों ने किस चैनल पे ज़्यादा रिलाई किया था और जिससे कि आपको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिल सके? मैम सबसे पहले तो आई वांट टू थैंक राज्यसभा टीवी. बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं जैसे बिग पिक्चर हुआ, मैं भी भारत हुआ, इनको देख के हमने काफ़ी कुछ सीखा है. अलग अलग एक्सपर्ट ओपिनियंस से हमारी ओपिनियंस डेवलप हुई है. So I think this is one of the good platforms which is helping us in gathering information. So along with you, even we can feel proud today of what RSTV has done. Yes, definitely. Yes. Okay. And Shrishti, what did you actually rely on in terms of newspapers, news channels? Like he said, the newspapers that he said, the same ones I referred. Only one I used to read. But I said you should cover it completely, and I used to make notes if I felt it was important. Coming to news channels, Rajya Sabha TV's The Big Picture was like my favorite.
and all of the things are covered so nicely, and I used to make notes out of it. So probably these are the channels which you can be assured that you'll get authentic information and you'll get new viewpoints, so you can add up to the notes. राकेश, आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण न्यूज़ चैनल कौन सा है जिससे कि आपको लगता है बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है? मैम, इन माय ओपिनियन राज्यसभा एक ऐसा चैनल है जिस पे मुझे कभी भी कोई डाउट नहीं रहा, और मतलब हमेशा जो एपिसोड्स आते थे उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता था। इंडियाज़ वर्ल्ड, बिग पिक्चर और देश देशांतर, ये शोज़ मैं रेगुलरली देखता था और ये मेरी प्रिपरेशन का एक इंटीग्रल पार्ट था। और कोई सवाल आपके जहन में हो प्रिपरेशन के चैलेंजेस को लेकर, सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशन को लेकर, एक एक करके पूछे। मेरा नाम रजत सारस्वत है। तो मैं आप सबसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आपके जो एक्सपीरियंस था यूपीएससी से पहले, जो आप कंपनीज में काम कर रहे थे, तो उसने कितना हेल्प किया आपके यूपीएससी प्रिपरेशन के अंदर? तो ये मैं पूछना चाहूँगा। पर्सनली आफ्टर ग्रेजुएशन मेरे को काफ़ी अच्छा जॉब ऑफ़र मिला था, एंड इट वाज इन साउथ कोरिया। तो मेरे को काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली टू डेवलप माई पर्सनैलिटी एंड गेट टू नो अबाउट थिंग्स फ्रॉम आउटसाइड, एंड आई डू बिलीव उससे मेरा जो ओवरऑल पर्सपेक्टिव है इट वाइडनड अ लॉट. Then I worked in Bangalore, I could relate to a few things which were good there or can be improved in India, and that was one of the motivation behind my decision to come into UPSC. And during my interviews also it helped me because some of the questions were from there, and I do believe कि लोगों को help मिलती है because overall personality improves if you are able to work also. सब्जेक्ट्स का जहाँ तक सवाल है वो तो एक इंडिविजुअल चॉइस होती है डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ बैकग्राउंड यू हैव एंड व्हाट प्रेफरेंसेस यू हैव, लेकिन इंटरव्यू भी एक बहुत बड़ा पड़ाव होता है कि आपने मेंस क्लियर कर लिया, आपके प्रीलिम्स क्लियर हो गए, इंटरव्यूज़ के दौरान आपने क्या क्या चीज़ें फेस की थी? अक्षत, मेरे हिसाब से इंटरव्यू जो प्रोसेस है दैट इज़ द मोस्ट एंजॉइंग प्रोसेस इन दिस एंटायर जर्नी. ओके, मतलब सही में अगर आपको मोटिवेशन चाहिए प्रीलिम्स और मेंस क्लियर करने का, तो एक ये भी हो सकता है कि जो ये प्रोसेस है इंटरव्यू का वो इतना बढ़िया है, आपकी पर्सनालिटी जो इम्प्रूव होती है इस दौरान, तो दैट इज़ अ वेरी इनरिचिंग प्रोसेस. और रही बात चैलेंजेस की, मेरा ये मानना है कि इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट है दैट इज़ सेल्फ कॉन्फिडेंस. ओके, अगर आप अपनी पर्सनालिटी को लेके कॉन्फिडेंट हैं तो फिर आप इंटरव्यू प्रोसेस में भले ही आपकी नॉलेज लिमिटेड हो, यू कैन स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन द इंटरव्यू. एब्सोल्युटली. अल्टीमेटली यूपीएससी का अगर आप खुद सिलेबस देखेंगे, उनके जो गज़ेट है वो देखेंगे, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है इट इज़ नॉट अ टेस्ट ऑफ योर नॉलेज, इट इज़ अ टेस्ट ऑफ हाउ यू आर एबल टू प्रेजेंट योर आइडियाज़. जो आप बातें करते हैं क्या वो लॉजिकल बातें हैं, जो आप जिस तरीके से अपनी बातें बोलते हैं, किस तरीके से आप प्रेजेंट करते हैं खुद को, दैट इज़ व्हाट मैटर्स. और मेरे लिए दिस वाज द बेस्ट एक्सपीरियंस दीज लास्ट 6 months. राइट. श्रेयस, कभी कभी होता है लोग बहुत ज़्यादा बोलने लगते हैं. 5 लोगों की एक कमेटी बनी हुई है जो आपको इंटरव्यू करने के लिए बैठी है. या तो आप बहुत ज़्यादा ह्यूमरस हो जाओगे, या तो बहुत ज़्यादा बोलोगे, या बिल्कुल गार्डेड रहोगे कि नहीं वो मैं कुछ भी बोलूँगी और वो पता नहीं क्या सोचेगा. You know, what is the kind of etiquette one should have really when you are before the interview committee? मैम, इसको मैं इस तरह से सोचता हाँ, था कि आपके नज़रिए से ही पूछ कि रही हूँ. जैसे मैं अपने दादाजी या अपने कुछ एल्डर्स के साथ बैठा हूँ और वो मुझे जानने की कोशिश कर रहे हैं. ओके. तो अगर हम पहले खुद को जान लें, अपने को समझ में आ जाए कि मैं ये चीज़ करता हूँ, जैसे आप बोल रहे हैं कि मैं, कुछ लोग होते हैं एकदम से तेज बोलने लगते हैं, कुछ लोग गार्डेड हो जाते हैं, तो आप अपने आप को अगर जान लेंगे कि मैं इस तरह से करता हूँ, फिर उसके बाद धीरे धीरे आप ये सोचे कि नहीं, ये तो हमारे एल्डर्स ही हैं जो हमें जानना चाह रहे हैं और हमें ये कोशिश करना चाह रहे हैं कि हमें आगे के लिए नियुक्त कर सकें. तो अगर हम हमारा ओरिजिनल रहें, ओरिजिनल वे में हम उनके साथ बात करें, तो आई थिंक वो बेस्ट रहेगा. सृष्टि, what do you have to say? जी बिल्कुल मैम, ओरिजिनलिटी इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. एंड कई बार हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, मतलब इंटरव्यू में जाने के पहले ऐसा लगता है पता नहीं क्या पूछ लेंगे, कुछ समथिंग वी वोंट बी एबल टू आंसर. So 2 things that the interview board is really cordial. They like my personal experience was the chairperson, the ma'am, she was really cordial and she supported me through the entire process, and it was a really good experience. So I came out thinking, acha, my interview is over, the UPSC one, which I was saying was going to be the biggest one. So it's really a cordial atmosphere. So you don't have to worry. Just be yourself and just try to answer. Even if you don't know a question, you can say that, ma'am, I don't know right now and I'll check on it or I'll read it. So probably these things can be said there. Okay. Rakesh, आप कुछ कहना चाहेंगे? Ma'am, I also agree with the points that Shreyans sir has made and Srishti ma'am has made. I would add 1 or 2 points. If like
अगर हमारी मल्टीपल डायमेंशनल पर्सनैलिटी है और अगर हम सेल्फ अवेयर हैं तो इंटरव्यू एक बहुत इनरिचिंग एक्सपीरियंस है और बहुत इंजॉइंग एक्सपीरियंस है। और मैम अगर बैलेंस आर्ग्यूमेंट दें, बैलेंस व्यू पॉइंट रखें तो मैम देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, कोई और सवाल ऑडियंस की तरफ से? हाँ, माइक दीजिए उनको प्लीज़। हाँ, पूछिए। फर्स्ट ऑफ कांग्रेचुलेसन सर, आई एम प्रदीप कुमार फ्रॉम गोड्डा, झारखंड। अगर सर कोई नया एस्पिरेंट है, मतलब IAS की तैयारी कर रहा है, तो मेंस के लिए सर कब से आंसर राइटिंग करना चाहिए जो उनके लिए बेटर रहेगा? आप बताओ, फिर एक एक करके सबके पास आती हूँ। मतलब टू बी फ्रैंक मेरी स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग रही थी एंड मेरा मैथ्स ऑप्शनल था, इट वाज अ वेरी लेंदी ऑप्शनल, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था। सो आई ओनली रिलाइड ऑन जो प्रीवियस ईयर के टॉपर्स थे उनकी मैंने कॉपीज़ देखी थी। काशिमा शी गॉट 12th रैंक लास्ट ईयर, पृथ्वी गॉट 24th एंड सौम्या मैम शी हैड गॉट 9th रैंक। मैंने उनकी कॉपीज़ देखी थी, आई जस्ट सॉ हाउ दे प्रेजेंट दे आंसर्स, मैंने उससे सीखने की कोशिश करी एंड वॉट एवर आइडियाज़ मेरे पास थे मैंने उनको अच्छे से प्रेजेंट करने की कोशिश करी। सो बीच बीच में मैं कभी कभी आंसर लिख लेता था बट आई डिडंट गेट दैट मच अमाउंट ऑफ टाइम बिकॉज मैथ्स का जो प्रोसेस है दैट इटसेल्फ टेक्स 6 to 7 months, तो इतना बचा नहीं था। तो इफ समवन टॉपर्स की कॉपीज जो थी पिछले पुरानी कॉपीज वो आपको हेल्प करती? हाँ, आई टुक इट एज एन रेफरेंस और फिर मैंने अपनी स्ट्रैटेजी उसके ऊपर बिल्ड करी। आई नेवर कॉपीड देम बट आई ट्राई टू लर्न फ्रॉम व्हाट द थिंग्स विच दे वर डूइंग राइटली, आई कैन अडॉप्ट इट एंड उसको मैं प्रेजेंट कर सकूँ अपने आंसर्स में। अक्षत, मेरे हिसाब से जो आपका सवाल है कि कब चालू करना चाहिए, आपको मेरे हिसाब से तुरंत चालू करना चाहिए, क्योंकि इसमें होता क्या है, हम बहुत डरते हैं कि मुझसे अभी आंसर नहीं लिखा जाएगा, अभी तो मैंने चालू किया है, कैसे लिख पाऊँगा। आई एग्री कि आप स्टैटिक नॉलेज अभी आपकी उतनी नहीं होगी कि आप जो है एकदम स्टैटिक वाले बेस सवाल कर पाएंगे, बट जो आप अखबार पढ़ रहे हैं उन पे जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कीजिए और भले ही कितना गंदा आंसर लिखे स्टार्टिंग में लिखिए, वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस से इतना अच्छा होने लग जाएगा और जितना जल्दी आप चालू करते हैं उतना एज मिलता है आपको। तो प्लीज़ स्टार्ट इट अगर आप कर सकते हैं तो। श्रेयांश, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? आंसर राइटिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और जैसा कि अक्षत ने कहा, आप जितना जल्दी हो सके लिखना चालू कीजिए। हम सब एक्चुअली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं, तो पिछले 6-7 सालों में हमने लिखने का बिल्कुल अभ्यास नहीं किया होता है, तो हमारे लिए तो यही सबसे बड़ा चैलेंज था कि हम अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करेंगे। तो इसके लिए प्रैक्टिस जितना जल्दी हो सके आप खुद प्रैक्टिस कीजिए, अपने दोस्तों को दिखाइए कि मैंने इस तरह से लिखा है, इसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, और उसी से आप धीरे 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 काफ़ी बेटर होते जाएंगे। आपको सिर्फ 1 महीना देना और वो 1 महीने में आप खुद को देखेंगे कि मैंने कैसे चेंज किया है अपने आप को। श्रेयस ने अभी दोस्तों का नाम लिया तो थोड़ी सी लिबर्टी लेती हूँ, थोड़ा सा सीरियस मोड से हटकर, कि जो ये एक धारणा है कि आप अपने दोस्तों को भूल जाइए, अपना जो सोशल सर्कल है उसको बिल्कुल भुला दीजिए, देयर शुड बी नो टाइम फॉर थिंग्स लाइक एक्सरसाइजेज, गोइंग आउट फॉर मूवीज़। क्या एक्चुअली इन चीज़ों के लिए आपके पास टाइम रहा है इस दौरान जब आप प्रिपेयर कर रही थी? मैम, टाइम तो हो जाता है क्योंकि वी आर नॉट रोबोट्स, तो देर आर टाइम्स व्हेन वी फील टायर्ड, व्हेन वी फील डीमोटिवेटेड, व्हेन वी फील वी कांट मेक इट. So this is the time where your dearest friends which have been with you, they are there to tell you ki let's watch a movie today, forget the exams. So these are the things you have to, you should be carrying a friend circle as well. And especially I was lucky, I got a chance to study like along in my home.